Dear students, in our previous session, we were studying about geometry and its basic facts. In the same sequence, I have taught you first of all about geometry, then point, then line, line segment, ray, plane, intersecting lines, parallel lines, transversal, concurrent lines, collinear points. Then we came upon angle. What is an angle? Types of angle. In types of angle we have studied about acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle, zero angle, complementary angle, supplementary angles, adjacent angles, vertically opposite angles and equal angles. Then we came to know about triangle, kinds of triangle, types of triangle on the basis of sides we have already studied. On the basis of sides, triangle has three kinds: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. And on the basis of angles, again triangle has three kinds: acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. Then we came to know about quadrilateral. In quadrilateral we have studied about different quadrilaterals such as parallelogram. What are the properties of parallelogram? We have already studied. What is a trapezium, a square, rectangle, rhombus, kite. Then we studied about circle. What is a circle? Main components of a circle we have studied about center. What is the center of a circle? What is its radius, its diameter, secant, semicircle, segment, arc, sector, concentric circles, circumference of a circle. And now we are studying about results related to a circle. What are the results related to a circle? In this sequence, I am going to tell you about the different results related to circles. Two results I have already studied, and now we are studying the third result. What is the third result? तो तीसरा इसका रिजल्ट है वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। वृत्त का केंद्र सेंटर, मान लिया ये एक वृत्त है, वो इसका सेंटर है। ये चाप AB दो कोण बनाता है, एक सेंटर पे बनाया O पर और दूसरा C पर बनाया। एक कोण बना AOB, दूसरा कोण बना ACB। तो कोण AOB ये केंद्र पर का कोण है, यह अन्य भाग पर बने कोण का दुगुना होगा, यानी कोण AOB इक्वल्स टू कोण ACB। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा जो कोण बनेगा वह अन्य भाग पर बने कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। एंगल AOB बराबर दो एंगल ACB। कोण AOB चूंकि केंद्र पर बना हुआ कोण है, तो चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वह अन्य भाग पर बने कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। तो पहला रिजल्ट यह है। दूसरा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। द एंगल विच इज फॉर्म्ड और सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज double to the angle which is formed on any other part by the chord. We have already studied. अब है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। The angle subtended on the semicircle is a right angle. अर्धवृत्त पर, आधा वृत्त पर जो कोण बनेगा वह क्या होगा? समकोण होगा। देखो ये आधा वृत्त पर AOB में कोण बना ACB। ACB क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त के आधे भाग पर ये बन रहा है। तो वृत्त के आधे भाग पर जो कोण बनेगा
अर्धवृत्त का जो कोण होगा वह क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण ACB इक्वल्स 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है, वृत्त के एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं। ये O सेंटर है सर्कल का, इससे कोण बन रहा है कौन, ACB ADB, ये कोण और ये कोण एक ही वृत्त खंड में ये दोनों कोण बन रहे हैं, दोनों का माप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण ACB इक्वल्स कोण ADB, लेकिन यह कोण क्या होगा, यह दुगना होगा उसका, क्योंकि ये सेंटर पर बन रहा है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सेंटर पर जो कोण बनेगा वह अन्य भाग पर बने कोण का दुगना होगा, लेकिन एक ही वृत्त खंड में जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। तो ये ACB ये कोण बना, ADB ये कोण बना, एक ही वृत्त खंड में बन रहा है, इसलिए दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अभी क्लियर हुआ, कोण ACB इक्वल्स कोण ADB। अब आगे टेंजेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त को एक बिंदु पर जो रेखा स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा टेंजेंट कहते हैं। नहीं, अगर एक वृत्त पे दो टेंजेंट खींचे जाएं, इसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है आपस में समान लंबाई की होती है। तो यहाँ P बिंदु से M और N जो है स्पर्श बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो किसी भी वृत्त पर बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उनकी लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो PM भी 4 सेंटीमीटर और PN भी 4 सेंटीमीटर। क्यों, बोथ दीज आर tangents drawn from an exterior point to the circle is same in length। बाहरी बिंदु से वृत्त पर अगर टेंजेंट खींचे जाएं तो उन टेंजेंट्स की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। दो टेंजेंट है, एक PM और दूसरा PN, दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जितना MN होगा उतना ही NP होगा। दोनों का लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये टेंजेंट हो गया, ठीक है।